حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله والصلاة والسلام على أهله أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون یقیناً درس کی بحث میں ابھی جو شروعات ہے وہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور روزے کی اہمیت، اس پر آیات اور روایات سے بحث چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہم کو کیا برکت، کیا رونق اور کیسی روحانیت عطا فرمایا ہے، اور گویا یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے وسیلہ ہے، ذریعہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں، طیب و طاہر کر لیں، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے، صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ گاڑی بھی گندی ہو جاتی ہے، اس کو بھی دھلا جاتا ہے، مکان کی بھی صفائی ہوتی ہے، فرش کی بھی صفائی ہوتی ہے، انسان اپنے بدن کو بھی صاف کرتا ہے۔ ہر چیز کی صفائی کے لیے کچھ نہ کچھ معین ہے، کہیں پائپ سے پاک کر دیتے ہیں، کہیں بس سرف لگاتے ہیں، کہیں بس صابن لگاتے ہیں، لیکن جب انسان کا دل مریض ہو جائے اور اس پر گرد و غبار آ جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے تک روزہ رکھا ہے کہ روزہ رکھتے جاؤ، تمہاری روحانیت پاک ہوتی چلی جائے گی، تمہارا کردار و اخلاق سنورتا چلا جائے گا۔ لہذا یہ مہینہ اپنی روحانیت کو پاک کرنے کا بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور روزہ بھی رکھنا ہے تو پورے اعضاء و جوارح سے روزہ رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ انسان صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کر لے اور سمجھ جائے کہ روزہ ہے۔ نہیں، روزے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ سے بھی روزہ رکھے، کان سے بھی روزہ رکھے، ہاتھ سے بھی روزہ رکھے، پاؤں سے بھی روزہ رکھے، اور بھوک اور پیاس کا تو روزہ ہے ہی ہے، اعضاء و جوارح۔ اس لیے کہ مولا نے فرمایا ہے نہج البلاغہ میں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، کم من صائمین، بہت سے صائم ایسے ہیں، روزے دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ نہیں ہے الا الجوع، سوائے یہ کہ وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا ہے۔ نہیں، روزہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان پورا ایک دم اپنے ذہن سے لے کر کے اپنے پاؤں تک ہر چیز کو پاک کرے، ہر چیز کو صاف کرے۔ اور صرف مولا نے فرمایا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ نے اس پر مثال بھی دیا ہے۔ مثال کیسے دیا؟ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جو اپنے پڑوس سے لڑ رہی ہے اور اس کو گالی گلوچ کر رہی ہے، شب و شتم کر رہی ہے۔ آپ کو جیسے پتہ چلا بلوایا اس کو، اور بلانے کے بعد آپ نے اس کو کھانا پیش کر دیا تو کہا حضور روزے کا موسم ہے، روزے کا مہینہ چل رہا ہے، میں روزے سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں، روزہ زبان پر کنٹرول کا نام ہے۔ تو دوسرے کو گالی دے رہی تھی اور سمجھے میرا روزہ ہے، یعنی پتہ چلا زبان پر بھی کنٹرول ہو، ہاتھ پر بھی کنٹرول ہو، پاؤں پر بھی کنٹرول ہو، اپنی آنکھ پر بھی کنٹرول ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، بہرحال فلسفی بحث ہے لیکن تھوڑا سا ہلکا کر کے ہم بیان کریں کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح کو اپنے لیے قائل کرے، اپنا بنائے، چونکہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ اپنا ہے لیکن نفس اور ہے، یہ جسم اور ہے۔ کہتے ہیں ہمارا، یہ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی چیز ہے جو وہ الگ ہے، یہ اعضاء و جوارح الگ ہے، یہ ہاتھ الگ ہے، پاؤں الگ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ قیامت کے دن سورہ یاسین میں آیا الیوم نختم
अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन ये बदन जो है गवाही देगा, यानी हाथ गवाही देगा कि इसने क्या किया है, पाँव गवाही देगा कि इसने क्या, यानी इसका मतलब ये है कि ये आधा और जवारे को हम अपने मुवाफिक बनाए, ऐसा बनाए कि क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही न दे। देखने में लग रहा है कि पाँव हमारा है, देखने में लग रहा है कि हाथ हमारा है, देखने में लग रहा है कि ये जो है जिस्म हमारा है, लेकिन न जिस्म हमारा है, न हाथ हमारा, न पाँव, बल्कि अल्लाह ताला ने सब अपने लिए बनाया है। सारी चीज़ें अल्लाह ताला की है, लिहाजा अगर अपना होता तो अपने खिलाफ गवाही न देता। ये क़यामत के दिन अपना बदन अपने खिलाफ गवाही देना, इसका मतलब ये चीज़ हमारी नहीं है, ये वदियत है, ये अमानत है, अल्लाह ताला ने दिया है। लिहाजा इसको समझाने के लिए अगर मिसाल दे दी जाए तो बात में पहले तो माशाल्लाह मिसाल दी जाती थी कि मतलब मूवी से मिसाल दे दी जाती थी, सीडी से, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल है, मोबाइल के ज़रिए से भी मिसाल दी जा सकती है कि ये कैसे हो सकता है कि हाथ हमारा है और हमारे खिलाफ तमाम चीज़ों को गवाही में जो है पेश करेगा, यानी सारी चीज़ों को जब्त कर रहा है। क़यामत के दिन जब इजाज़त मिल जाएगी तो यही हाथ बोलने लगेगा, यही पाँव बोलने लगेगा। उसकी मिसाल ऐसे ही है। पहली बात तो अल्लाह ताला की कुदरत पर हमको कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला की कुदरत में इतना बड़ा बदन है, अल्लाह ने इजाज़त दिया तो ये ज़बान भी जो है क्या है, गोश्त का लोथड़ा है, लेकिन अल्लाह की इजाज़त है तो ये ज़बान बोल रही है। अभी अल्लाह की इजाज़त नहीं कान बोले, अल्लाह की इजाज़त नहीं हाथ बोले, सिर्फ ज़बान पर इजाज़त है तो हमारी ज़बान बोल रही है। तो आज ज़बान को इजाज़त है, कल अल्लाह ताला हाथ को इजाज़त दे देगा, वही तो इजाज़त देने वाला है, वही तो कादिर मुतलक है। आज हमारी ज़बान बोल रही है और कल अल्लाह ताला कह नहीं, आज ज़बान बंद हो जाए, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम ज़बानों को बंद कर देंगे, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और इजाज़त देंगे कि उनका हाथ उनके खिलाफ बोले, उनका पाँव उनके खिलाफ बोले। यही वजह है कि इतना बड़ा महीना हमारे दरमियान में रख दिया गया है ताकि हम तौबा करते जाएं, इस्तिग़फ़ार करते जाएं। जैसे मतलब ये बन रहा है माशाल्लाह, आप जो है मोबाइल में ज़ब्त कर रहे हैं, हमारा बदन भी टेप रिकॉर्डर है, हमारा बदन भी जो है एक एक चीज़ को ज़ब्त कर रहा है। यानी मखलूक में इतनी ताकत है कि उसने छोटी सी एक चिप निकाल दी है, छोटा सा एक जो है आला निकाल दिया जिसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें ज़ब्त हो जाती हैं। और हमने मसलन खुतबा पढ़ा, हमने जो है तकरीर किया, और तकरीर करने में कोई ऐसा हो गया कि ज़ेर ज़बर हो गया, वायरल हो जाता है कि पता चला कि हम पेश पढ़ना था ज़बर पढ़ दिया, ज़बर पढ़ना था ज़ेर पढ़ दिया, या आयत जो है ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो गई। अब इसमें पता चला सब अगर समझदार नहीं तो एक दो तो रहते, एक साहब ने कान में आके कहा कि हुजूर आपने ऐसा पढ़ दिया है, ये जो है आपने सही नहीं पढ़ा है। अब हम अगर अकड़ जाए, जैसे ही अकड़े कि नहीं हम सही नहीं पढ़ चुके, हम इतना पढ़ के आए हैं, ये हुए, तो फ़ौरन गए कि थोड़ा ये आप चलाइए। तो अब मोबाइल को जो पीछे से चलाना शुरू किया तब हम नादिम हो गए कि हाँ ये तो गलती हो गई। तो पता चला कि दिखाने के बाद हम नादिम ना हो, पहले ही नादिम हो जाए। तो अल्लाह ताला ने माह मुबारक रमज़ान को रख दिया कि क़यामत में नादिम ना हो, पहले ही नादिम हो जाओ, नादिम होते जाओ, इस्तिग़फ़ार करते पहले ही से नादिम हो जाना, पहले ही से इस्तिग़फ़ार कर लेना, पहले से तौबा कर लेना। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी बरकत है। वरना वो हमारा खालिक व मालिक था, हमारा आमिर व हाकिम था, वो ऑर्डर दे देते थे बस जो तुमने कर लिया, कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन उसने कहा नहीं, इंसान है, हो सकता है इससे गलती हो जाए, तौबा भी करते रहो, इस्तिग़फ़ार भी करते रहो। और उसका सबसे अच्छा महीना यही है, यूँ तो साल भर करना है। और इस्तिग़फ़ार का एक मतलब माशाल्लाह, चूँकि ये जो है तकरीर बाहर में जा रहे हैं, माशाल्लाह तायद भी आती है, ईरान से भी एक मौलाना साहब तायद कर रहे थे कि ऐसी बातें बहुत कम सुनने में आती है। लिहाजा इशारा कर दें कि आप यकीन जानिए अल्लाह ताला ने कितना बड़ा करम किया हमारे ऊपर, कितना बड़ा रहम किया है, जो इस्तिग़फ़ार और तौबा को दरमियान में रख दिया है कि अगर ये कह देता नहीं जो हो गया बस अब मोहलत मिलने वाली नहीं है, तो यकीनन वो कह सकता था। लेकिन वो कितना बड़ा रहीम है, कितना बड़ा करीम है कि उसने पूरा महीना हमको दे दिया। यूँ तो साल भर करना है, लेकिन इस महीने में ख़ास तरीके से इस्तिग़फ़ार और तौबा, और जो माना मैं पेश कर रहा था वो माना भी पेश कर दूँ कि तौबा और इस्तिग़फ़ार का मतलब ये नहीं कि इंसान अगर गुनाह की तरफ जो है अपने मुड़ जाए और देख ले कि हाँ यकीनन गुनाह किया है तो सजदे में चला जाए, या जो है दोनों गालों पर मार ले, ये सोचे कि हमने अपने गाल पर मार लिया, हो गया इस्तिग़फ़ार। नहीं, इस्तिग़फ़ार के असल माने कायल हो जाने के, असल माने नादिम हो जाने के, परवरदिगार मैं नादिम,
यकीनन अब हमसे गुनाह नहीं होगा। अब हम कल से मसलन आज रोज़ा नहीं रखे थे, मालूम हो गया, हदीस में आया है, रिवायत में आया है, कुरान में आया, अब मैं परवरदिगार तौबा कर रहा हूँ, कल से रोज़ा रखूँगा। तो आपने जो है गोया अपने गाल पर नहीं मारा, सजदे शुक्र में जा कर के कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपने सोच लिया, यही तौबा हो गया। यानी आप सिर्फ कायल हो जाए, परवरदिगारा हमसे गुनाह हो रहा था, हम तेरी बारगाह में कायल हैं, हम तेरी बारगाह में नादिम हैं। उसकी मिसाल ऐसी ही है। फिर मैं मिसाल दे दूँ, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह आयत और रिवायात को अगर मिसाल से पेश किया जाए तो बात वाजिब हो सकता है कि आप भी गए हो बॉम्बे, तायद करेंगे, जो लोग बॉम्बे गए हैं वो हमारी तायद करेंगे। बॉम्बे में आप देखें इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप जिस रुख को भी चले तो आपको लगेगा कि हज़ारों आदमी दौड़ता हुआ चला जा रहा है। आप स्टेशन की तरफ जाए तो स्टेशन की तरफ दौड़ते हो, बड़ी तेज़ चलते हैं वहाँ। ऐसा नहीं कहा था बॉम्बे की तरफ जो है, कहते हैं ज़िंदगी बड़ी फास्ट है, वहाँ बहुत तेज़ काम करते हैं। लिहाजा बस अड्डे जा रहे हैं दौड़ते हुए, स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ बहुत आहिस्ता चलने का कोई काम ही नहीं, बहुत तेज़ी के साथ। लिहाजा वहाँ का कायदा कानून ये है कि जितने ही तेज़ चल रहे हो, अगर चलते चलते थोड़ा सा किसी से टकरा गए तो आप खड़े हो जाएंगे, वो भी खड़ा हो जाएगा, वो भी झुक करके आपको आदाब करेगा, आप भी आदाब करेंगे, यानी चूमेंगे, भाई साहब गलती हो गई, वो ये कहेंगे आगे बढ़ेगा, आप ये कहेंगे आगे बढ़ेंगे। अगर जो है आप वहीं पर थोड़ा धक्का लग जाए, अकड़ जाए तो फौरन उसकी सजा मिले। जो बॉम्बे के दादा मशहूर है, फौरन लड़ाई हो जाती है। लेकिन कितना ही बड़ा दादा क्यों ना हो, कितनी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, अगर आप फौरन कायल हो गए, भाई साहब गलती हो गई, तो बॉम्बे का दादा क्यों ना, वो भी झुक जाएगा, चूम के कहेगा हाँ साहब ऐसा हो जाता है। तो पता चला कि जब आप एक गुंडा जो मखलूक है उसके सामने अगर नादिम हो जाए तो वो कायल हो जाता, माफ़ कर देता है, तो जो सारी कायनात का खालिक है वो क्यों नहीं माफ़ करेगा। हम माफ़ी तो मांग करके देखें, हम इस्तिग़फ़ार तो करके देखें, हम नादिम हो जाए। कि यहाँ पर नादिम होने का मकसद ये है कि कायल हो जाए, हाँ परवरदिगार गुनाह हुआ है, तभी हम तेरी मस्जिद में आए, तभी हम इबादत में आए, तभी हम जमात में आए हैं। ये जमात में आना ये भी गोया तौबा के लिए इशारा है। ये जो है नमाजों में आना ये भी इस्तिग़फ़ार का इशारा कि आदमी चल करके आ रहा है, वरना अपने घर में पढ़ लेता। लेकिन यहाँ पर आना और आने के बाद उसकी मस्जिद में बैठ करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अलबत्ता ये बात आगे थी भी, मसला भी पेश कर दिया जाए कि मसले में है कि आप आए मस्जिद में, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, और आप मसलन अपने लिहाज से हाथ बुलंद करके या सजदे में जा कर के तौबा, लेकिन ये आपको हक नहीं है कि कोई गुनाह आपने किया है तो किसी और से बताएं। अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाए, परवरदिगारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल में सोच सोच के एक एक चीज़ सोचते जाए, माफ़ी मांगते जाए। लेकिन चाहे कितने ही करीबी दोस्त क्यों ना हो, अपने गुनाह को किसी और को शरीक न करें, यानी न बताएं। इसलिए कि पता चला कि सत्तारुल उयूब है अल्लाह ताला, अकेले में आपने किया तो माफ़ कर देता, लेकिन जब गवाह बना लिया तो माफ़ी फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर अदालत का मतलब आ जाएगा, नहीं तुमने किया है तो और लोगों ने किया, जब सबको हम दे रहे हैं तो तुमको भी जो है सज़ा देंगे। लिहाजा अपने किसी भी गुनाह को शेयर करने की ज़रूरत नहीं। जैसे बहुत से लोग कर देते हैं, आप मोबाइल वगैरह देखें तो बहुत सी चीज़ों को बताते रहते हैं, नहीं बताना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में आके कायल हो जाए, आके इस्तिग़फ़ार कर लें, आके तौबा कर लें, और सिर्फ नादिम हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। पूरी तस्बीह पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, पूरी तस्बीह पढ़ लिया और खुदा न खास्ता कल से फिर वही काम में लग गए। नहीं, इस्तिग़फ़ार का मतलब सिर्फ ज़बानी नहीं होना चाहिए बल्कि क़ल्बी लगाव होना चाहिए। बहरहाल ये अखलाकी पहलू था। उसके बाद मसाइल की तरफ, चूँकि जैसा दो हिस्सा तक़सीम 10 मिनट अखलाक और फ़ज़ाइल, अखलाकियात, और 10 मिनट मसाइल की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहली बहस जो चल रही है उसमें तक़लीद की बहस चल रही है। तक़लीद में पेश कर दिया, सबसे पहले तो आदमी पर ख़ुद जिम्मेदारी को वो कोशिश करे, मुज्तहिद बने, आयतुल्लाह बने और नाइब इमाम बने, या जो है इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाए कि वो मोहताज बने। यानी अरबी इस्तिलाह में कहा जाता मोहताज। मोहताज का मतलब ये है कि वो मुज्तहिद तो नहीं बन पाया, आयतुल्लाह तो नहीं बन पाया, बहुत बड़ा मौलाना तो नहीं बन पाए, लेकिन माशाल्लाह इतना पढ़ लिया 12-15 साल कि अब कुरान खोलता जाता है और मालूम होता जाता है, यहाँ जो है लिखा हुआ है कि वुज़ू ऐसे करो, यहाँ पर लिखा हुआ है तयम्मुम ऐसे करो, यहाँ पर लिखा हुआ है नमाज ऐसे पढ़ो। तो कुरान देख करके जो समझ जाए, अहादीस देख करके जो समझ जाए कि हमको कैसे अमल करना है, उसको मोहताज कहा जाता है। तो गुंजाइश दे दिया शरीयत ने, कहा पहली दफ़ा नहीं है, तुम खुद मुज्तहिद बन जाओ, खुद आलिम दीन बन जाओ। नहीं बन पा रहे हो तो मोहताज यानी इतनी काबिलियत सलाहियत हो जाए कि कुरान और हदीस से मसला निकालो। लिहाजा अब यहाँ से एक जो है फैसला और हो गया
एक मामला और हल हो गया। जो ये लोग कहते हैं कि साहब हम क्यों तकलीद करें, अखबारी हजरात ये कहते हैं हम क्यों तकलीद करें, तो आपको कौन कहता है तकलीद करने के लिए? आप खुद इतने काबिल बन जाइए, खुद इतने पढ़े लिखे हो जाइए कि आप किसी के मोहताज न रहें। तो आपको दुनिया में भी देखा जाए तो हर आदमी एक दूसरे का मोहताज। हर आदमी इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर का मोहताज। हर आदमी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर मोहताज। जैसे दुनियावी कामों में हर एक दूसरे के मोहताज हैं, ऐसे दीनी उमूर में भी सब मुस्तहिद नहीं बन सकते, सब आयतुल्लाह नहीं बन सकते, सब मोहताज नहीं। तो आपको मजबूरी में कहा जा रहा है, यानी इनका जवाब यही है जो अखबारी है, कहीं भैया मजबूरी आ जाइए, पढ़िए, होते में पढ़ करके आइए, न मानिए, लेकिन जब तक पढ़ रहे हैं 8-10 साल 20 साल तब तक तो मानना पड़ेगा। आपकी काबिलियत हो जाए, सलाहियत हो जाए, फिर ठीक है, आप किसी मुस्तहिद को न माने। जो मुस्तहिद मासूम थोड़ी होता है, मासूम हमारे 14 हैं, अल्लाह को मानना है, 14 मासूम को मानना है। उसके बाद ये जो आपको मुस्तहिद को मानना है, ये आपकी मजबूरी है कि आप हौदे नहीं गए, आप मदरसे नहीं गए, आप इदारे नहीं गए, आप अखबार नहीं जानते, आप हदीस नहीं जानते, आप रिवायत नहीं जानते, आप माना नहीं जानते, आप मफहूम नहीं जानते, आप नस्ख नहीं जानते, आप मज़कूर नहीं जानते, आप मुक़द्दम नहीं जानते, आप मुअख्खर नहीं जानते, आप इब्तिदा नहीं जानते, आप इंतहा नहीं जानते, आप ज़ेर नहीं जानते, आप ज़बर नहीं जानते, आप जो है अरबी नहीं जानते, आप फारसी नहीं जानते, आप इस तरह। उसके बाद कहते साहब हम बड़े काबिल हैं, तो काबिल नहीं बल्कि काबिल हैं। काबिल नहीं बल्कि काबिल है कि कुछ मालूम है ही नहीं है, अकड़े हुए हैं आयतुल्लाह साहब यानी खामनाई साहब के मुकाबिल में आ रहे हैं। मुझे पता चला कि रहबर के मुकाबले नहीं, रहबर ने भी नहीं कहा है, रहबर ने खुद कोशिश कर ली है, थोड़ी कहा है कि हमारी जो है इत्तिबा करो माइत नहीं। अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दिया, अल्लाह ताला ने ये फजीलत दिया कि एक आदमी जब इतनी मेहनत कर जाए तो उसका दर्जा ये है कि अब तुम उसके पीछे पीछे चलो, अब तुम उसके तौदील मसाइल पर नजर रखो, अब तुम उससे मसला पूछा करो। तो पता चला कि ये मजबूरी का नाम है। यानी उनका सबसे प्यारा जवाब यही कि अगर कोई कहे ठीक है भाई कौन आप पर ज़बरदस्ती लाद रहा है, क्योंकि दीन तकमीली नहीं है, दीन ज़बरदस्ती के नाम आप पढ़ लीजिए, जाइए 20-22 साल रहिए, कुम में 20-22 साल रहिए, नजम में आपको इतनी काबिलियत सलाहियत आ जाए, पता चला अरबी वगैरह कुछ आती नहीं, ये जो है बाहर से जो पैसा आ रहा है। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रहबर, हमारे आयतुल्लाह, हमारे मुस्तहिद इतने बुलंद पाए पर फायज हो चुके हैं कि अब उनके मुकाबले में दुनिया में कोई आ नहीं सकता। लिहाजा ये हसद है, ये इसराइल हसद कर रहा है, अमेरिका हसद कर रहा है। बाकायदा आपको खबर होगा कि काफ़ी यानी मिलियार्डर डॉलर जिसको कहा जाए खर्चा किया जा रहा है कि इनके मुस्तहिदीन को कैसे गिराया जाए, क्योंकि हमारे आयतुल्लाह और मुस्तहिद की वजह से हमारा इस्लाम चमकता जा रहा है, हमारा दीन आगे बढ़ता चला जा रहा है। लिहाजा इसराइल, अमेरिका, बरतानिया ये मिल करके कुछ ऐसे बड़े बड़े खतीबों को खरीद लेते हैं जो बेचारे पढ़े लिखे ज़्यादा है नहीं, अलग से खिताबत सीख गए, बोलना आ गया, तो ऐसे लोगों को खरीदना आसान हो जाता है। आप कहेंगे इसकी मिसाल क्या है? उसकी मिसाल यही कि आप देखिए माशाल्लाह 22-23 साल हम पढ़े हुए हैं, हमारे लिए ऑफर नहीं आता अमेरिका से, हमारे लिए लंदन से ऑफर नहीं आता कि आइए आपको जो है अशरा पढ़ना है। लेकिन एक आदमी जो 2-3 साल जो है सिर्फ बोलना सीख गया है, लंदन जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, कनाडा जा रहा है, ये और बात है ना, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? सलावत भेजे आप बड़े बड़े उलमा किराम में पढ़ लिख करके बेचारे अपने अपने इलाकों में खिदमत कर रहे हैं, और पता चला जो ऐसे ही जो है थोड़ा तैयारी कर ली, घूम रहे पूरी दुनिया में, तो उनको बाकायदा खरीद लिया जाता है बहुत, और उनसे बुलवाया जाता है, ये कहो इतना पैसा खर्च करो। लिहाजा हमारे पास दीन तहमीली नहीं है, बल्कि हमारे पास ये है कि आप पहली कोशिश ये करोगे खुद आलिम बन जाओ, उसके बाद दूसरे नहीं बन पा रहे तो मोहताज बन जाओ, मोहताज में उसमें भी काबिलियत ज़रूरी है। तीसरी सूरत में जब आपके पास अब कुछ नहीं बचा है तो कम अज़ कम जो अमल कर रहे हो किसी मुस्तहिद के ताबे हो, उनके तौदील मसाइल आपके सामने हो, उनके बच्चों उन बेचारे ने मेहनत किया है, मशक्क़त किया है। लिहाजा बहरहाल तकलीद की बहस अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक हो गई है। अब थोड़ा सा आगे जो है पहुँचेंगे, तो उसमें पहले थोड़ा सा माह मुबारक रमज़ान, उसके बाद माह मुबारक रमज़ान के बाद फिर इंशाअल्लाह वो इब्तिदाई मसाइल जो रोज़मर्रा के इन नजासात के बारे में, वज़ू, गुस्ल, तयम्मुम के बारे में इंशाअल्लाह सरसरी तरफ बहस होगी, और इंशाअल्लाह सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। एक मसला और बयान कर दें, काफ़ी लोग पूछे, अभी फ़िलहाल सहरी का टाइम 4 बजे से लेके 5 बजे तक है। ये जो 5 बजे तक कह रहे हैं तो उसके चक्कर में लोग पड़ जाते हैं कि 8-10 मिनट और है, कर लिया, उसमें गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी नियत नहीं कर पाते, बैठे अजान शुरू हो जाती है। लिहाजा 4 से 5 रखें, ये 12 मिनट 14 मिनट जो बीच में मिलता है आपको, उसमें नियत करें, दांत साफ करें, दुआएं सहर पढ़े, नमाज़ सब पढ़े, या जो है और नमाज माशाल्लाह है वो सब पढ़े, एहतियातन यही 12-14 मिनट पहले छोड़ दें, और ये तकरीबन 1 हफ्ते तक चलेगा।
जो मसला पूछ रहे हैं ये यानी 4 से 5 वाला तकरीबन ये पहले अशरे में चलता रहेगा। उसके बाद 1 हफ्ते 8 दिन के बाद थोड़ा सा बदलेगा, यानी 5-6 मिनट, कोई ज़्यादा नहीं, सुबह का टाइम कम बदलेगा। ये शाम वाले में थोड़ा तब्दीली आ रही है, तो इसको याद रखें। और शाम में माशाल्लाह साथ में खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, लिहाजा इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। घर में बता करके आए कि एहतियातन 6:30 बजे रोज़ा खोलें, यानी 26-27 पर हो रहा है, लेकिन 6:30 से पहले कोई रोज़ा न खोले। अपने पास मुस्तहब ये है कि अगर जो है मगरिब की नमाज पढ़ करके रोज़ा खोलें तो ज़्यादा बेहतर है, मुस्तहब पर। अलबत्ता उसमें भी एक मसला है कि आपने मेहमान बुलाया और मेहमान ऐसा बेचारा वो जो मतलब उसकी आदत एक नमाज नहीं बल्कि पहले रोज़ा खोलता है, तो आप उसके एहतराम में फिर रोज़ा खोलिए, ये भी उसका एहतराम कीजिए। यानी आपका मेहमान आया हुआ है, उसकी आदत ये पहले वो खा लेता है फिर नमाज, तो आप भी बैठ जाइए। आप नहीं कि हम अभी मस्जिद से पढ़ करके आते हैं या आप बैठे, ये जो है अपने पास शरीयत में एहतराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा ये अभी सुबह का टाइम 4 से 5 तकरीबन 8-9 दिन तक चलता रहेगा। एक सलवात भेजा आप।